Welcome, my dear students. You are studying with BPS Academic Solutions. Today we will solve four parts of question number 1, exercise 5.3 based on sum of AP. So question number 1, find the sum of the following APs. First part, AP 2, 7, 12 to 10 terms. Solution. So first we will write the formula. The sum of the first n terms of an AP is given by Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiplied by t. This is 1. Where Sn is equal to sum of the n terms, n is equal to number of terms in AP. A is equal to first term of the AP and D is equal to common difference. Remark. The formula for the sum of the first n terms has four quantities S, A, D, N. If we know any three of them, we can find the fourth. Another formula, Sn is equal to n by 2, A plus L. This is 2. Where Sn is equal to sum of n terms, A is equal to first term of the AP, n is equal to number of terms in AP, L is equal to the last term of the AP. Remark, this formula is useful when first term and last term are given and the common difference is not given. Now we return to question. Given AP is 2, 7, 12 to 10 terms. Here A is equal to 2 first term, D is equal to 7 minus 2 is equal to 5. N is equal to number of terms 10. We know that the formula Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiplied by D. Therefore, put all the values. So S10 is equal to 10 by 2, 2 multiplied by 2 plus 10 minus 1 multiplied by 5 is 2 and D is 5. So is equal to 5, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस ये हो गया 45 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 49 ऐड कर दिया इज इक्वल टू 245. इनका मल्टीप्लिकेशन 245. सो सम ऑफ AP इज 245. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. AP minus 37, minus 33, minus 29, to 12 terms. Solution. Here A is equal to minus 37 first term and D is equal to minus 33 second term minus first term minus in bracket minus 37 is equal to 4 and N is equal to 12 terms. We know that Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by D. Therefore, S12 is equal to 12 by 2, 2 multiplied by minus 37 first term plus 12 minus 1 and 12 multiplied by common difference D, here 4 is equal to 6. ये 2 से डिवाइड किया 6, ये हो गया 37 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -74 प्लस ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6 -74 प्लस 11 का 4 से मल्टीप्लाई किया 44 इज इक्वल टू 74 में से 44 माइनस किया तो हो गया -30. तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -30. So S12 is equal to -180. So the sum of the first 12 terms of the AP is -180. Now we will do the next question. Question 1, part 3.
So here AP is 0.6, 1.7, 2.8 dot 200 terms. Formula, solution formula, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d 1. Here a is equal to 0.6 first term and d is equal to 1.7 minus 0.6 is equal to 1.1 is equal to n is equal to 100. On putting the values of a, d, n in 1, फॉर्मूला में इन सब की वैल्यू रख दी हमने. तो एस 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1. यहाँ पर जनरली हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ. दिस यू मे लर्न द कैलकुलेशन, हाउ टू डू ईजी कैलकुलेशन. सो इज इक्वल टू 100 बाई 2 इन ब्रैकेट 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1.2 प्लस यहाँ भी 100 में से 1 जो है माइनस नहीं कर रहा हूँ. यू मे लर्न इजी कैलकुलेशन. सो 100 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, 1.1 का जो है अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 100 बाई 2, ये हो गया 1.2 प्लस 1.1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो गया 110 और 1.1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1.1 माइनस 1.1. एस 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2. अब यहाँ देखिए आप 1.2 है और माइनस 1.1 है तो इसमें से ये माइनस किया तो क्या बचा 0.1 और 0.1 को इसमें ऐड कर दिया तो हो गया 110.1. अब 110.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 11,010 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 से अब इसको डिवाइड किया तो हो गया 5,505. सो द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द AP इज 5,505. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. Part number 4. Here AP is 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10, to 11 terms. Solution. Here A is equal to 1 upon 15 first term and D is equal to common difference. So 1 upon 12 में से 1 upon 15 में माइनस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होगा, इसीलिए 1 upon 10 minus 1 upon 12, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. सो D इज इक्वल टू 1 upon 10 माइनस 1 upon 12. अब यहाँ LCM ले लिया, 10 और 12 का 60 आया तो 10 से डिवाइड किया तो 6 टाइम्स किया तो इसलिए 6 और 12 से इसको डिवाइड किया तो 5 टाइम्स इसलिए -5 इज इक्वल टू 1 upon 60. 6 में से 5 को माइनस कर दिया और n इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है क्योंकि हमने 11 टर्म्स तक सम निकालना है. वी नो दैट नाउ वी फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. देयरफॉर S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 15, ये क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 60. सो इज इक्वल टू 11 बाई 2 अपॉन 15 हो गया ये, प्लस अब ये हो गया 10 तो 10 अपॉन 60 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये हुआ 10 अपॉन 60. अब 11 बाई 2 अपॉन 15 प्लस 10 बाई 60. 10 बाई 60 को 10 से कट कर दिया तो ये 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स इज इक्वल टू 11 बाई 2 और 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6. S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2. अब ये हो गया, इसका 15 और 6 का LCM ले लिया तो आया 30. अब 15 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया तो 2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस, और 6 से 30 को डिवाइड किया तो 5 टाइम्स गया तो प्लस
5 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 4 को ऐड कर दिया तो 9 अपॉन ये 30। अब इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर दिया 11 का 3 से तो 33 और 10 का 2 से तो इक्वल टू 20। So the sum of the first 11 terms of the AP is 33/20. Question number 2, find the sum of the given below. But we will solve this question in next video. और इसके अलावा अगर आपको जो है इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा भी आप अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँ वहाँ। और कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेथड या सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो या फ्यूचर वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ या किस चैप्टर पर बनाऊँ वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।